اور میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم اور ہمارے ہم خیال علماء نے یہ کہا ہے کہ میر سید محمد نور بخش علیہ رحمہ انتہائی نالائق آدمی تھے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، اور انہوں نے اپنی نالائقی کی وجہ سے کئی جگہوں سے نقلیں لگا کر الفقہ الاحوط کو ترتیب دیا ہے۔ یہ جملے آپ کے ہیں، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو جملے ہیں ہم نے اور ہمارے ہم خیال علماء میں سے کسی عالم نے کسی بھی پلیٹ فارم پر کہے ہوں۔ اگر کہے ہوں تو آپ تحریراً یا ویڈیو میں یا آڈیو میں ہمیں پہنچا دیں۔ اگر ہم نے ایسا کہیں نہیں کہا تو آپ کو اپنی بات سے رجوع کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اصلاح کرنے والے علماء جن کی ہماری نظر میں بہت بڑی قدر و منزلت ہے، ان کی جلالت علمی کے ہم معترف ہیں، ان کے علم و فضل کے ہم معترف ہیں، ان کی شرافت کے ہم معترف ہیں۔ وہ انتہائی شریف النفس اور باہر اور قابل عالم دین اور باعمل علماء ہیں، لیکن ان علماء کے اندر بھی یہ برائی بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ بغیر کسی تحقیق کے ہر آنے والی افواہوں پر یقین کر لیتے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، میرے عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم المرتضیٰ بوائز ہاسٹل ان قرآنک سائنسز اکیڈمی کی ہفتہ وار بزم ادب میں موجود ہیں۔ اس میں طلباء کے ساتھ تربیتی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الحجرات کی آیت نمبر 6 سے کر رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ایک بہت بڑی معاشرتی برائی کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں ہر عامی و عارف، عالم و جاہل اور ہر خاص و عام ملوث ہے۔ بدگمانی، بغیر تحقیق کے افواہوں پر یقین کرنا اور اس بات کو آگے پھیلانا اور غیبت کا بازار گرم کرنا، اس طرح کی معاشرتی بڑی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی گناہ گار آدمی، بے اعتبار آدمی تمہارے پاس آتا ہے، کوئی خبر لے کر، کوئی ایسی بات لے کر، افواہ لے کر تمہارے پاس آتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، فتبینوا، پس اس بارے میں تم تحقیق کر لیا کرو۔ جو بھی افواہ آتی ہے اس افواہ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے بجائے اس آنے والی افواہ پر، اس کے بارے میں تحقیق کر کے اس پر یقین کرو۔ بغیر تحقیق کے ہر آنے والی افواہ پر یقین مت کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم فائدہ یعنی نقصان پہنچاؤ، بجہالۃ، نادانی میں، تمہیں علم نہیں ہے کہ اس قوم کے بارے میں تمہیں جو خبر پہنچائی گئی ہے وہ درست نہیں ہے، اور تم ایسا کوئی اقدام کرو جس کے کرنے سے اس قوم کو یا اس بندے کو نقصان ہو جائے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم نے جو کچھ کیا اس پر بعد میں تم لوگ نادم نہ ہو، شرمندہ ہوں تم کہ میں نے جو افواہ پر یقین کر کے میں نے جو اقدام اٹھایا تھا، اس اقدام کی بنیاد پر ایک قوم کو نقصان پہنچا، ایک آدمی کو نقصان پہنچا، اور بعد میں جب تمہیں خبر پہنچے کہ یہ جو خبر مجھ تک پہنچی تھی وہ درست نہیں تھی، صرف ایک اڑتی ہوئی
अफवाह पर यकीन करके मैंने ये इक़दाम उठाया था जिसकी बुनियाद पर उस कौम को नुकसान हुआ, लिहाजा फिर बाद में तुम क्या होगे, नादिम होंगे, तुम्हें पछताना पड़ेगा। इससे पहले तुम उस बारे में यकीन करो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक अहम बात फरमाई है, जिस बात पर अमल ना करने की वजह से हमारे मुआशरे में इंतशार है, फितना है और बहुत ज़्यादा हमारे लोग नुकसान उठाते हैं। रिश्तों के अंदर भी नुकसान उठाते हैं और इलाक़ाई सतह पर भी नुकसानात उठाते हैं। इसी तरह बैनुल अक़वामी तौर पर भी इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। हमारे यहाँ इस्लाह करने वाले उलमा, जिनकी हमारी नज़र में बहुत बड़ी क़द्र व मंजिलत है, उनकी जलालत इल्मी के हम मोतरिफ़ हैं, उनके इल्म व फ़ज़ल के हम मोतरिफ़ हैं, उनकी शराफत के हम मोतरिफ़ हैं। वो इंतहाई शरीफ नफ्स और बाहिर और काबिल आलिम दीन और बाअमल उलमा हैं, लेकिन उन उलमा के अंदर भी ये बुराई बदरजे अतम मौजूद है। वो बग़ैर किसी तहक़ीक़ के हर आने वाली अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं और झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि किसी की इज़्ज़त चली जाए, किसी के बारे में लोगों को बदगुमान किया जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा मैं इस वीडियो के ज़रिए से उन तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आपकी इज़्ज़त, आपका मुकाम, आपका मर्तबा हमारे दिलों में हमेशा से है और ता क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। आपकी जलालत इल्मी, आपका शरीफ नफ्स होना और आपका बाअमल होना ये मुसल्लम है और हम आपका एहतराम करते हैं। लेकिन आप जैसे शरीफ नफ्स बाअमल उलमा भी अगर इस तरह की हरकतों में मुलविस होंगे और इस तरह की बदगुमानियाँ फैलाएंगे और झूठ बोलेंगे, झूठ पर यकीन करेंगे, तो हम जैसे जाहिलों का क्या हाल होगा। कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर आने वाली झूठी ख़बरों पर यकीन न करो, उस पर तहक़ीक़ कर लिया करो, बग़ैर तहक़ीक़ के झूठ मत बोलो, तो हमें चाहिए कि हम झूठ पर यकीन न करें और झूठ न बोलें। मैं उन सारी बातों की तरफ जाना नहीं चाहता, सिर्फ़ एक बात जो आपने अपनी किसी तकरीर में कही है कि अल-फ़िक़्हुल अहवद के बारे में और मीर सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में हम और हमारे हम ख़याल उलमा ने ये कहा है कि मीर सैयद मोहम्मद नूरबख्श अलैहि रहमा इंतहाई नालायक आदमी थे, नाउज़ बिल्लाह, नक़्ल कुफ़र नबाशत, और उन्होंने अपनी नालायकी की वजह से कई जगहों से नकलें लगाकर अल-फ़िक़्हुल अहवद को तरतीब दिया है। ये जुमले आपके हैं, तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि ये जो जुमले हैं हमने और हमारे हम ख़याल उलमा में से किसी आलिम ने किसी भी प्लेटफार्म पर कहे हों। अगर कहे हों तो आप तहरीरन या वीडियो में या ऑडियो में हमें पहुंचा दें। अगर हमने ऐसा कहीं नहीं कहा तो आपको अपनी बात से रुजू करना होगा। हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मीर सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से ये गुस्ताखी हमने कभी नहीं की, न हम ऐसा कहने का सोच सकते हैं। हम तो उन्हें एक जलीलुल क़दर मुज्तहिद और बहुत बड़े आलिम दीन, सूफ़ी, आरिफ मानते हैं, और उनकी जो काविश है अल-फ़िक़्हुल अहवद लिखने की, उसे भी इंतहाई कदर की नज़र से देखते हैं और उस पर हम मिन व अन अमल करने और करवाने की तहरीक चला रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर उसमें बाद में, क्योंकि उस किताब के लिखे हुए कई सदियां गुजर चुकी हैं, तो कुरान मजीद की तरह वो महफूज तो नहीं है। उसमें अगर कोई तहरीफ हो चुकी है तो उस पर तहकीक करनी चाहिए, लेकिन इससे हटकर हमने कोई बात इस मौजू पर नहीं की। ये नहीं कहा कि हमने इसमें आपने नक़्ल व चस्पान से काम लिया है या आप नालायक हैं, ऐसा कभी नहीं कहा। अगर हमने ऐसा कहा है तो आप पर लाजिम है कि आप उस बात को कहीं से भी ढूंढ कर हमारे सामने पेश करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जैसे अज़ीमुल मर्तबत उलमाए किराम पर से अवामुन्नास का यकीन और एतमाद ख़त्म होगा। हदीस पाक में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5 है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस कुल्ला मा समिअ। फरमाया कि उस आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात पर उसको आगे फैलाता है, हर सुनी हुई बात पर बग़ैर तहक़ीक़ के उस बात को वो आगे फैलाता है। जो आदमी ये करता है कि बग़ैर तहक़ीक़ के हर सुनी हुई बात को आगे फैलाता है, वही झूठा है, उसके झूठा होने के लिए यही काफ़ी है। और बदगुमानी जो लोग फैलाते हैं और बदगुमानी खुद करते हैं और आगे लोगों को भी किसी के बारे में बदगुमान कर देते हैं, बदजन कर देते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। सही बुखारी की हदीस नंबर 5143 में और सही मुस्लिम में 2563 नंबर हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी फैलाना, बदगुमान हो जाना सबसे झूठी बात है। सबसे बुरा जो है, सबसे बड़ा झूठ ही यही है कि तुम किसी के बारे में बदगुमान हो जाओ और लोगों को बदगुमानी फैलाओ उसके बारे में। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आने वाली अफवाह पर यकीन न करने और उस पर तहक़ीक़ करने के बारे में सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2010 में इरशाद फरमाते हैं, अत्तअन्नी मिनल्लाहि वल इजलतु मिनश शैतान। संजीदगी, मतानत, ठहराव ये अल्लाह की तरफ से है, और उजलत करना, जल्दीपनी, हर बात को जल्दी जल्दी से बग़ैर तहक़ीक़ करके सुनना और आगे फैलाना, इस तरह करना शैतान की तरफ से है। लिहाजा जो भी आलिम दीन, जो भी मुअज़्ज़ज़ शहरी, जो भी शख्स किसी भी ख़बर के आने के बाद वो मतानत से, ठहराव से, संजीदगी से उस मामले की तह तक पहुँचाने की कोशिश करता है, यकीनन उस पर अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर इनामात होते हैं। वो अल्लाह की तरफ से, यानी वो रहमानी बंदे हैं। और जिसके पास कोई अफवाह आती है बग़ैर किसी गौर व फ़िक्र के, बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, उस अफवाह को आगे फैलाकर ग़ैबत से अपनी महफ़िलों को जमाते हैं, यकीनन वो शैतानी लोग हैं। फरमाया कि अल-उजलतु मिनश शैतान, ये जो उजलत करना है वो शैतान की तरफ से है। मैं इसी पर इक्तिफ़ा करूँगा। अगर कोट करने पर आऊँ तो आयात और अहादीस की लंबी कतार मौजूद है, लेकिन मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को हर बात को सुनकर उसकी तहक़ीक़ किए बग़ैर आगे फैलाने से बचाए रख और ईमान व आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।